Example 1.4 A. Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. B. Why can one ignore a quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is, large scale charges? So let's discuss one by one. So first of all, we have a statement that electric charge of a body is quantized. Here we will take one example in which let's consider a situation where you have to go to the fruit market and buy an apple. How many apples you can buy? Well, there are many factors that will decide the quantity of an apples to buy, and it depends on your money, your requirement at home, the space in your bag that you carry, and the price of an apple per kg. सो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे वहाँ पे जो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना सारा एप्पल खरीदना है मार्केट से। ओके, सो ये हम लोग ने एक सिचुएशंस कंसिडर करी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एप्पल लेना है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द बाइंग एप्पल। सो मैंने इस तरह से उस सिचुएशन को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो जैसे ही आप जाते हो वहाँ पे तो फ्रूट सेलर आपको पूछेगा कितना आपको एप्पल खरीदना है, और वो हमेशा आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एप्पल्स ही देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, बट फ्रूट सेलर विल ऑलवेज गिव्स यू एन एप्पल इन टर्म्स ऑफ हिज इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज 1 डजन, 2 डजन, 15 एप्पल्स, 30 एप्पल्स। सो इस तरह से हम लोग एप्पल बाय करेंगे। 1 डजन मतलब 12 एप्पल हो गए, 24 एप्पल हो गए, या फिर और जितने आप चाहोगे उतने आप खरीद सकते हो। He never give you one and half of an apple, seven and two third of an apple. So एक और आधा, सेवन और उसका टू, एक का टू थर्ड ऐसे मिला के वो एप्पल आपको नहीं देगा अगर उसको 1 केजी और 2 केजी बनाना है। शायद वो 1 केजी बनाते वक्त एक और एक्स्ट्रा डालेगा, थोड़ा बहुत वो बार्गेनिंग करेगा उस पे वेट पे, और थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ऐसा दे सकता है, लेकिन वो आधा कट करके कभी भी आपको एप्पल नहीं देगा। सो ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज के केस में कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाउ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू बी क्वांटाइज्ड। ओके, so come to the next point. The same situation can be imagined here in the process of transfer of charges from one body to another body, irrespective of way of transfer. So जैसे कि यहाँ पे वे ऑफ ट्रांसफर मतलब हम लोगों ने दो वे ऑफ ट्रांसफर देखे हैं, एक तो by touching and another is by induction. Okay, so these are the two ways of transfer of charge from one body to another body. सो कोई भी ट्रांसफर वे हो सकता है यहाँ पे चार्जेस का, लेकिन अब जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो जाएंगे इंटीग्रल मल्टीपल के हिसाब से ही। इट मीन्स दैट when the electrons are transferred from one body to another, the amount of electron being transferred is an integral multiple of it. इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि Q is equal to N into E. So during the transfer, there will be 100 or 1000 or any integer, let us say 650 or any etc. Any integer we can take. That much number of electrons do get shifted from one body to another body, and it is not possible to transfer 100.65 number of electron. This is the one example I am taking. So आप कोई भी ऐसा पॉइंट वाला नंबर ले सकते हैं, लेकिन उस नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स, उतने नंबर वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते from one body to another body, and this is what the meaning of quantization of charge. And this concept was first suggested by the experimental law of electrolysis discovered by Faraday, and experimentally it was demonstrated by Millikan in 1912. Okay, so this is what the answer to this question, that is electric charge of a body is quantized. So charge हमेशा quantized nature शो करते हैं। इसका मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से ही ट्रांसफर होंगे। सो ये था पहले सवाल का आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। So the next question is, why can one ignore the quantization of electric charge when dealing with macroscopic,
that is a large scale charges. So basically there are two scales, one is macroscopic and another is microscopic. Okay, so in macroscopic the number of charges is comparatively large than in microscopic. Okay, so we are going to find that the concept of quantization of charge is not working when we deal with a macroscopic level. It means let us consider a system in which a number of electrons. Now this number is very important and that will decide your system is microscopic or macroscopic. Okay, so first point that number. Okay, there are about 6 into 10 raised to 18 electrons in a charge of -1 coulomb. So अगर हमारे पास 1 कूलम -1 कूलम इतना चार्ज है तो उसके अंदर 6 into 10 raised to 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज रहता है, इस कारण यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन ले रहे हैं। अगर हम लोग प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो अबाउट 6 into 10 raised to 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम लोग, इस कारण यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन वी कैन राइट Q is equal to plus NE, प्लस माइनस NE। सो हियर हम लोग n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए प्लस माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, सिंपली वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव साइंस। सो जैसे कि हमारे पास 1 कूलम इतना चार्ज रहेगा तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 into 10 raised to 18। और ये जो चार्ज की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, देखो 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम। तो अगर ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 1 कूलम इतना ही आंसर मिलने वाला है। ये आप होमवर्क के लिए रखो, या आप चेक करो 6 इंटू 1.602 एंड ये पावर ऑफ 10 अगर आप फाइंड करोगे मल्टीप्लिकेशन करके तो आपको 1 कूलम इतना ही आंसर आएगा। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल प्रूफ। अगर हमारे पास 1 माइक्रोकूलम इतना चार्ज है, जैसे कि 1 कूलम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग देखेंगे 1 माइक्रोकूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ हमें करनी है, जैसे कि माइक्रोकूलम ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 raised to -6 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम लोग ने लिया है तो यहाँ पे -6 10 raised to -6 से मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। और फाइनली लेफ्ट विथ सी दिस 6 into 10 raised to 12, यहाँ पे 18 था, यहाँ पे -6 था, so finally we left with 6 into 10 raised to 12 and I am rounding off this 6 to 10. The 10 into 10 raised to 12 that comes out to be 10 raised to 13 of E, that this is the charge on electron. So यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम के अंदर 10 raised to 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है नहीं। और अभी हम नंबर पे जाएंगे, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो मान के चलो हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10 raised to 13 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रहने वाले हैं। और उसके ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो उसका टोटल चार्ज जो रहेगा वो 1 माइक्रोकूलम रहेगा। सो 1 माइक्रोकूलम के अंदर 10 raised to 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, तो ये बात सामने आई, वो जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल डिफाइन करते हैं। अभी बात आती है माइक्रोस्कोपिक लेवल की। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं तो हमारे पास कितने चार्ज है, चार्जेस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ ई। तो बस हमारे पास 10 और 100 तक ही इलेक्ट्रॉन्स है। और उस सिस्टम को, जैसे कि हमारे पास सिस्टम है उसके ऊपर 10 और 100 के बीच में ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस सिस्टम को हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक लेवल बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो हमारे पास दो लेवल्स है, दो सिस्टम्स है। एक सिस्टम में 10 raised to 13 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी सिस्टम में 10 raised to 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हम लोगों ने अगर कंसिडर की और 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स से के बीच में से हम लोगों ने 2, 5, 15 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ऐसा अगर किया तो कुछ नेट चार्ज जो रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 10⁻13 ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अगर इस नंबर को हम लोग ने इस नंबर में से 10, 15, 20, 25 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और डाल दिए अंदर, इंक्रीज और डिक्रीज किए, तो कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नेट चार्ज के ऊपर। और इसी कारण हम कहते हैं कि द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं और निकाल रहे हैं ऐसे मान के चल रहे हैं, जो कि एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो वर्क नहीं करेगी, इग्नोरेबल रहेगी व्हेन वी डील विथ मैक्रोस्कोपिक स्केल, क्योंकि वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही बड़ा नंबर है ये 10⁻13 एज कम्पेयर टू 10। और अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल है जहाँ पे पकड़ के चलो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है हमारे पास, और उसमें से 4 या 5 निकाल दिए, तो हमारा टोटल चार्ज जो सिस्टम का रहेगा वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है, और वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसी कारण क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is can be ignorable can be ignorable when we deal with macroscopic level, and it is a considerable when we deal with microscopic level. This is what the answer for this question. Thank you.